everyone. As we are going with the second chapter of economics of class 9, that is people as resource, and in that, in previous videos we have seen so many things, and now today we will see the quality of population and quantity of population, that is different thing. Quality of population, that is different thing. Quantity of population, that means numbers of people, कि हम सारे लोगों को काउंट कर लेते हैं, that is the quantity. But what is quality? Out of that quantity, when we select some people on the basis of their education and skill, and people who are going to contribute in our national growth or national income, in our society's status, so that people are called as quality population. And here quality of population determined by two factors, that is education and health. Today we will talk about education, that how education becomes, what is the role of education in quality of population. So that we will see. About health we will talk later on. So role of education. What is the role of education in our life? That is very important thing. That is why we are getting education, because it is very important to live our happy life and to upgrade our social status. So first thing, that is the features, we can say, that is the quality also. So if we have to write down about the role of education, so these are the points. What is first point? First point, it opens new horizons. New horizons, that means it gives us new platform. ये हमें करने के लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज, प्लेटफॉर्म, दैट मीन्स अपॉर्चुनिटीज, नए नए अवसर वो हमें प्रदान करता है व्हेन वी आर एजुकेटेड, वी आर स्किल्ड. सेकेंड थिंग, इट प्रोवाइड्स न्यू एस्पिरेशन एंड वैल्यू. एस्पिरेशन, दैट इज डिजायर्स. जैसे जैसे हम एजुकेट होते जाते हैं और स्किलफुल होते जाते हैं, उसके साथ साथ हमारी जो डिज़ायर्स हैं कुछ और करने की, कुछ और ज़्यादा करने की, खुद को पॉपुलर करने की, तो वो सारी चीज़ें हमारे अंदर बढ़ती जाती है. दैट इज़ न्यू एस्पिरेशन एंड वैल्यू. एंड इट गिव्स अस वैल्यू. ये हमें वैल्यूएबल बनाता है अपनी सोसाइटी में, हमारी कुछ कीमत हो जाती है एजुकेशन के कारण. इट गिव्स आइडेंटिटी टू अ पर्सन. Education gives us identity. Definitely, if we are successful people or we are doing any job, so in that we are known by our that particular identity. कि हम जो भी जॉब कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी एक आइडेंटिफिकेशन बन जाती है कि लोग हमें उस नाम से बुलाते हैं कि ठीक है, ये व्यक्ति टीचर है, या वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, IAS है, IPS है, और एनीथिंग, वी कैन टेक एनीथिंग, फैशन डिज़ाइनर. Okay. And maintain social status, and it always day by day it upgrade your social status. जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ती है, एजुकेशन बढ़ता है, आप नए नए काम कर रहे हो, तो वो क्या है, वो धीरे धीरे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है, और उससे आपका जो एक सोशल स्टेटस, सामाजिक स्तर है, वो धीरे 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 बढ़ने लगता है. लोग आपको पहचानने लगते हैं एज अ रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी, एज अ रिसोर्स ऑफ द country. It contributes towards the growth of society. Definitely, if we are the resource, we became the resource, so our contribution is going towards our country, towards our society. So we are the person, when we are getting education, that education gives us that strength to upgrade our society, to contribute our society. हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोसाइटी को कुछ दे सके, अपने सोसाइटी के लिए कुछ कर सके. तो दैट इज बिकॉज ऑफ एजुकेशन. It enhances national income. Already we have discussed about this point, that it always enhances your national income. ये हमेशा आपके national income, national growth को बढ़ाने का ही काम करता है. कैसे? हम अब एक ह्यूमन कैपिटल बन चुके हैं, हम अपनी कंट्री में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो बाय दिस वे वी आर इंक्रीजिंग नेशनल इनकम हियर. Increase the efficiency of governance also. So many of us, after getting education, after getting all the techniques, skills, so after that the talent to govern anything, to lead anything. बहुत ढेर सारे लोग होते हैं हम में से जो चीज़ों को लीड करना शुरू कर देते हैं, बट
बिकॉज ऑफ दैट एजुकेशन, ये एजुकेशन की वजह से उनके अंदर जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ उन्हें फील होती, इतना कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई हो जाता है कि वो चीज़ों को कैसे गवर्न करें, चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कैसे ले जाएं, उसे कैसे मैनेज करें, ये सारी चीज़ें एजुकेशन के रोल में है कि एजुकेशन के कारण ये सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर जो है वो धीरे धीरे बाहर आने लगती है हमारे स्किल के कारण। इफ़ वी आर नॉट educated, we are not skillful, we have not taken any kind of training, so definitely हम बहुत ज़्यादा उसे क्या कहते हैं गॉड गिफ्टेड हो के भी वो सारी चीज़ें हमारे अंदर ही रह जाएंगी, वो बाहर नहीं निकल पाएंगी। लेकिन जब एजुकेशन अपना रोल प्ले करता है तो उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, सोशल स्टेटस बढ़ता है, आप नेशनल इनकम, नेशनल आपके नेशन में आप अपना कंट्रीब्यूशन दे पाते हो। सो दिस वाज all about the quality or role of the education. You can write down from here. Now अब हमें ये देखना है कि what is the government's role in providing us education, कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या क्या किया है एजुकेशन को प्रोवाइड करने में। बट बिफोर दैट वी हैव टू टॉक अबाउट द चैलेंजेस, डिफिकल्टीज फॉर द गवर्नमेंट को क्या क्या डिफिकल्टी होती है या क्या डिफिकल्टी हुई जब उन्होंने इस एरिया में ध्यान देना शुरू किया। सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट को सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो पुअर स्कूलिंग इज देयर, दैट मीन्स दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड टू गो इन द स्कूल, एंड इफ सम स्टूडेंट्स आर गोइंग सो देयर इज दे आर लीविंग देयर स्कूलिंग इन बिटवीन, कि वो जो है बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ के ड्रॉप आउट कर जा रहे हैं। सो दिस इज द चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट। इसके बावजूद हम कह सकते हैं, इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने काफ़ी ढेर सारे स्टेप्स लिए हैं टू प्रोवाइड अस एजुकेशन। सो दीज आर द स्टेप्स, वी विल गो वन बाय वन। फर्स्ट इज एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री दैट इज द बेस ऑफ एजुकेशन। जो बेसिक एजुकेशन हम कहते हैं वो एलिमेंट्री एजुकेशन है, फ्रॉम 6 years to 14 years। 6 years आप जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें बच्चों के जो एडमिशन्स होते हैं वो 6 years से पहले नहीं किए जाते हैं, और 6 years पे क्लास 1 में उनके एडमिशन्स लिए जाते हैं। तो ये एलिमेंट्री एजुकेशन क्लास 1 से और 6 years ऑफ एज से शुरू होती है, और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे पैमाने पे इसे हर एक स्टेट में दिया हुआ है एलिमेंट्री एजुकेशन, एंड ऑल थिंग्स आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। इन दैट स्कूल्स एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी जो भी स्कूल में जो भी खर्चे लगते हैं, आपकी कॉपी, बुक्स, आपके यूनिफॉर्म वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें जो है वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई हैं। एंड वाई द रीज़न बिहाइंड दिस, सो दैट द स्टूडेंट दोज हु बिलोंग फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप, जो भी बच्चे हैं जो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं हैं, जो गरीब बैकग्राउंड से हैं, तो वो यहाँ आके जो है बिना पैसे दिए अपनी एजुकेशन को यहाँ वो पूरा कर सकते हैं। एंड इन एलिमेंट्री एजुकेशन द फोकस इज ऑन द गर्ल्स एजुकेशन। गर्ल्स एजुकेशन पे फोकस ज़्यादा है। वाई? बिकॉज हियर इन इंडिया देयर इज अ पार्शियलिटी बिटवीन डॉटर एंड सन। Parents are not very much eager to give education to the daughter, so that is why government has given some schemes for the girl child, so that girls should be more and more educated. Now come on Navodaya Vidyalaya. Navodaya Vidyalaya from the government side it is given in each district. Okay, in each district there is one Navodaya Vidyalaya, and in Navodaya Vidyalaya you can get admission in class 6. क्लास 5 आपने एलिमेंट्री एजुकेशन में पास करने के बाद उसके बाद देयर इज एंट्रेंस टेस्ट फॉर नवोदय विद्यालय, एंड पेरेंट्स आर वेरी मच ईगर टू सेंड देयर बर्ड टू द Navodaya Vidyalaya because reputation of Navodaya Vidyalaya is very good and facilities are very good. That is why there is entrance test pattern, and after this the students can get education easily here, and quality education, not only education, quality education is given in Navodaya Vidyalaya. Now vocational streams क्या होते हैं? vocational stream ये होते हैं कि after class 8 means from class 9, okay, this education is giving in a short term,
कि छोटे छोटे काम को दिया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है स्कूलों में, ताकि बच्चे जो है आपके 9-10 का बच्चा थोड़ा सा उसका इंटेलिजेंस लेवल जो है हाई हो जाता है, वो समझने लायक हो जाता है, कुछ करने लायक हो जाता है। तो थ्योरी पार्ट के साथ साथ एक प्रैक्टिकल पार्ट भी उन्हें दे दिया जाता है, कराया जाता है, जिससे वो अपने जीवन को, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को सर्वाइव कराने के लिए अगर एजुकेशन के साथ साथ भी कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। क्योंकि जो भी फैमिली है बिलोंग फ्रॉम वेरी पुअर बैकग्राउंड, तो इन बिटवीन दे आर लिविंग देयर एजुकेशन बिकॉज दे हैव बर्डन, बच्चों पे बर्डन आ जाता है फैमिली को सर्वाइव कराने का। सो गवर्नमेंट हैज गिवन दिस फैसिलिटी कि आपको छोटे छोटे काम सिखा दिए जाए, जिससे आप अपनी एजुकेशन को छोड़ना ना पड़े और आप जो है थ्योरी पार्ट के साथ इसे एक साथ ले जाते हुए 1-2 सालों में आप इस काबिल हो जाओ कि आप जो है कुछ भी छोटा मोटा काम करके अपना कम से कम फैमिली और अपने लिए जो है कुछ कमा सको, कुछ कर सको। तो आपको पढ़ाई भी नहीं छोड़नी होगी। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, we can say that elementary education, it comes under elementary education, step towards providing elementary education to all children. Sarv Shiksha Abhiyan, it is given in all the government schools to all the children in age group of 6 to 14 years. 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनके लिए सर्व शिक्षा अभियान दिया गया है। और ये जो है टाइम बाउंडेशन, एक टाइम बाउंड प्रोजेक्ट था कि 2010 तक जो है ये सारी चीज़ें सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो भी स्कीम्स रखी गई थी उसे कवर करना था। इट वॉज द इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे बढ़ने से, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एक साथ आगे आने से इस सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। इसमें दोनों का रोल बराबरी का था, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट विद द लोकल गवर्नमेंट्स। ठीक है, वहाँ लोकल गवर्नमेंट दैट मीन आपके गांव के लोकेलिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं जैसे ग्राम प्रधान वगैरह हैं, उन्हें भी इन्वॉल्व करके जो है इस काम को आगे बढ़ाया गया, ताकि गरीब बच्चों की पहचान हो सके, वो उन बच्चों की पहचान हो सके जो अपने दम पे, जिनके पेरेंट्स उन्हें जो है प्राइवेट स्कूल्स में नहीं भेज सकते, तो उनकी पहचान करके उन बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है एजुकेट किया जा सके। अचीविंग द गोल्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सारी चीज़ें इसलिए की गई ताकि जो एजुकेशन का एक गोल है उसे अचीव किया जा सके। नाउ व्हाट गवर्नमेंट हैज गिवन, ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू स्कूल कैंप। ब्रिज कोर्सेज, ब्रिज क्या होता है, किसी भी दो जगह को एक साथ मिलाने का काम होता है। दैट मीन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ड्रॉप आउट केसेस, जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ के चले जा रहे हैं, कुछ सालों बाद फिर उन्हें लग रहा है कि पढ़ाई करनी चाहिए, अब उसके लिए क्या किया जाए, तो दैट इज ब्रिज कोर्सेज कि बीच में कुछ स्कीम ऐसी बनाई गई है ताकि उनके उस साल के गैप को जो है एक साथ कैसे कवर किया जाए, तो उसके बारे में जो भी प्रोजेक्ट तैयार है उन्हें ब्रिज कोर्सेज कहते हैं। एंड बैक टू स्कूल कैंप, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं उन्हें बैक टू स्कूल कैंप्स के द्वारा जो है पेरेंट्स को मोटिवेट किया जाता है कि आपके जो भी बच्चे पढ़ाई छोड़ के चले जा रहे हैं उनको वापस आप स्कूल तक भेजिए, उन्हें वापस कैसे लाया जाए। टीचर्स आर टेकिंग एफर्ट इन दिस बैक टू स्कूल कैंप्स एंड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन प्राइमरी स्कूल, टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन प्राइमरी स्कूल। सो स्टूडेंट्स, we have seen that it is all is done to increase the enrollment in primary schools. Now come on midday meal scheme. It is also given by the government, and to increase the number of students it is given, and it is school meal program launched in 1995. 1995 में ये प्रोग्राम दिया गया था और ये स्कूल में बच्चों को खाना प्रोवाइड किया जाए, उससे रिलेटेड ये प्रोग्राम है। इन दिस कुक्ड फूड इज सर्व, और इसमें क्या होता है, पका पकाया भोजन बच्चों को जो है उनके लंच टाइम में दिया जाता है, ताकि जो बच्चे हैं वो लंच टाइम में जो है खाना खाने के बहाने अपने घर ना चले जाए। होता यही है बेसिकली, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे खाना खाने के बहाने पहले घर चले जाते थे और फिर वापस घर से नहीं आते थे। तो अब क्या किया गया है, जब से ये चीज़ें उन्हें स्कूल में ही प्रोवाइड की जाने लगी हैं, तब से ये सारे केसेस बंद हो गए। बच्चे लंच करने के बाद स्कूल प्रीमाइसेस में ही रहते हैं ताकि वो फर्दर की एजुकेशन वहाँ पे ले सकें। एंड पर्पस ऑफ दिस स्कीम आर, टू पर्पसेस आर देयर, improve the nutritional health of students.
अब वहाँ जो 6 ईयर से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशन देने के लिए जो है ये कुक फूड उन्हें दिया जाता है. समटाइम्स फ्रूट्स आर गिवन, समटाइम्स मिल्क आर गिवन. Okay, so time to time so many things are given by the government so that health of the student is maintained there. Second, by this enrollment will be increased and by this एक गरीब बच्चे के लिए जो है सबसे बड़ा लालच होता है खाने का, तो उसकी वजह से बच्चे धीरे धीरे स्कूल आने लगे और वहाँ पे एनरोलमेंट जो है बढ़ने लगा है बच्चों का. सो दिस वाज द सक्सेस ऑफ मिड डे मील स्कूल. This is the success of government, we can say. Now come on the 7th point, the 12th plan. Okay, 12th plan, that means here we can say 12th 5th year plan. जो हमारे 5 year plan बनते थे, तो ये 12th plan है जिसका ड्यूरेशन था 2012 to 17, 2012 से 2017 तक का ड्यूरेशन 12th प्लान का है. और उसमें क्या रखा गया है, टू रेज द कंट्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, कि इसमें जो है इनका जो लक्ष्य था, जो इनकी स्ट्रेटेजी थी, जो इनका गोल था, उसको ये रखा गया कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है एजुकेशन का इन हायर एजुकेशन, अब हम स्कूल से निकल के हायर लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब हम ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, उसके बाद की बातें कर रहे हैं. तो यहाँ पे 18 ईयर्स टू 23 ईयर्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस एज ग्रुप. अब हम इस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, हम एलिमेंट्री एजुकेशन से बाहर आ चुके हैं. तो इनका जो गोल था उन्होंने ये सेट किया कि जो कंट्रीज का GER होगा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, उसको 25.2%, ओके, 25.2% से बढ़ा के इन्हें कितना ले जाना है, 30% तक ले जाना है. दैट मीन्स इन द स्टार्टिंग दे हैव सेट द टारगेट 25.2% की 2017-18 में ये जो टारगेट है हमें कहाँ तक पहुँचना है, 25.2% यहाँ तक हमें पहुँचना है. और 2020-21 तक हमें कहाँ तक पहुँच जाना है, 30%. ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का जो ग्राफ है वो 30% तक बढ़ जाना चाहिए. दैट मीन 5% का डिफरेंस, 5% हमें ऊपर जाना है. तो दिस वाज द टारगेट इन 12th प्लान कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 25.2% से बढ़ा के 30% तक करना है. अब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, सी इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर यूज्ड टू डिटरमाइन the number of students enrolled in school at several different grade levels like elementary, middle school and high school. Okay, so in short we can understand by this कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब ये होता है कि आपकी कंट्री में जो है एक साल में आपके कितने बच्चे इनरोल हो रहे हैं डिफरेंट लेवल पे, एलिमेंट्री एजुकेशन में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, कि हर एक लेवल पे कितने बच्चों का एनरोलमेंट हो रहा है. तो वही यहाँ पे बढ़ाने की बात हुई थी कि 2017-18 में इतना है और 2020-21 तक हमें इतना जाना है. ओके, नाउ स्ट्रेटजी फोकसेस ऑन, गवर्नमेंट ने जो अब स्ट्रेटजी आगे के लिए बनाई उसमें उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया वो देखिए. इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी, अडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बनाया कि जो भी आपकी पढ़ाई का कार्यक्रम, जो भी पढ़ाई का आपका सिलेबस होगा वो ऐसा होना चाहिए कि और पढ़ाई हर एक बच्चे की पहुंच में हो, हर एक बच्चा इजीली जो है पढ़ाई एजुकेशन ले सके, और वो क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए, ना कि क्वांटिटी बेस्ड. भले ही उसमें सिलेबस कम कर दिए जाए लेकिन बच्चा जब उसे पढ़े, जब कोई एक चैप्टर पढ़े तो उसे काफ़ी कुछ उसमें समझ में आ जाना चाहिए. इस तरह से सिलेबस का उसमें पैटर्न को लिया जाए. एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम, और स्टेट जो है अपने लेवल पे, स्टेट को पूरा अधिकार है कि वो ये डिसाइड करे कि उसके स्टेट के लेवल पे, क्योंकि लोकल लैंग्वेजेस भी हैं, लोकल चीज़ें भी ज़्यादा होती हैं, तो स्टेट उस हिसाब से डिसाइड करे कि वहाँ के लोगों के लिए क्या बेनिफिशियल, वहाँ के स्टूडेंट्स को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, और उस हिसाब से वो जो भी अपना करिकुलम रखती है तो उसे फॉलो कराया जाए हर स्कूल में. वोकेशनल एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए और वोकेशनल कोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जाए ताकि बच्चे जो है इंडिपेंडेंट बन सके, अब आत्मनिर्भर बन सके. सिर्फ थ्योरी पार्ट से ही आगे नहीं बढ़ना हो, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल पार्ट और ट्रेनिंग पार्ट्स, ये सारी वोकेशनल कोर्सेज चलाए जाएँ. डिस्टेंस एजुकेशन, दैट मीन्स डिस्टेंस एजुकेशन में क्या है, आप
जैसे आपके ऊपर किसी स्टूडेंट के ऊपर पूरी घर की जिम्मेदारी आ गई है, अब वो पढ़ाई कैसे करे, पढ़ना भी चाह रहा है क्योंकि उसे अपना स्टेटस अपग्रेड करना है, हाई इनकम की तरफ जाना है, उसकी डिज़ायर्स हैं, तो उसके लिए डिस्टेंस एजुकेशन रखा गया है कि आपको घर पे बैठ के आप अपने घर की सारे काम करते हुए पढ़ाई करो, सारी चीज़ें आपको घर पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी, सिलेबस बुक्स वगैरह, ओनली यू हैव टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन टू गिव योर एग्जाम। ठीक है, दैट इज डिस्टेंस एजुकेशन। जो दूर बैठे एजुकेशन दी जाती है दैट इज डिस्टेंस एजुकेशन। कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जब हम स्कूल जाके एजुकेशन लेते हैं, दैट इज फॉर्मल एजुकेशन, एंड नॉन फॉर्मल जो कि हम स्कूल नहीं जा रहे हैं तो वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। तो उन दोनों को एक साथ करके कैसे बेनिफिट दिया जाए स्टूडेंट्स को, इसमें भी फोकस है गवर्नमेंट का। Distance and IT education, we have discussed already this. Now yes, come on the next point, that what is, come on the next topic, that is literacy rate. And before that we have seen so many things, now we have so many ideas in your book. This data is given, and I think that according to me I have taken it in the last of this video, so that everything is very much clear. It in your book it is given in between the lines, in between your pages, but I have taken from there and I am going to discuss about this. Watch it very carefully because this data is very much important, it should go in your mind technically. Now see, this is bar graph and 1951, it has started from 1951 and we have calculated it 2000 till 2011, and you can see 1951, 1961, 1971, that means after every 10 years this survey is taken. हर 10 साल के अंतराल पे जो है सर्वे लिया जाता है किसी भी चीज़ का, तो हर एक 10 साल के इंटरवल का ये डेटा है। और इसमें हमें क्या देखना है, इन दिस डेटा वी हैव टू सी द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, हमें इंडिया की लिटरेसी रेट देखनी है। फर्स्ट वी शुड नो अबाउट व्हाट इज लिटरेसी, लिटरेसी क्या है। लिटरेसी हम बात करें, लिटरेसी क्या है, इट इज द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट। लिटरेसी जो है आपकी वो एबिलिटी है जिससे आप जो है किसी भी चीज़ को पढ़ते हो, लिखते हो, उसे अपनी भाषा में इंटरप्रेट करते हो और उस भाषा में एक अच्छी लैंग्वेज में जो है आप किसी से कम्युनिकेट कर पाते हो, आप उस चीज़ को दूसरे तक पहुंचा पाते हो, तो दैट इज लिटरेसी। नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू सी लिटरेसी रेट। सो रेट दैट मीन्स दैट दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट, और रेट क्या है, इट इज द परसेंट ऑफ द पीपल इन सर्टेन सैंपल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। ओके, किसी कंट्री का, अगर ये स्टेट वाइज भी होता है, कंट्री वाइज भी होता है, तो किसी कंट्री या किसी पर्टिकुलर स्टेट या किसी उस पर्टिकुलर स्टेट में किसी पर्टिकुलर एरिया डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है, तो उसकी एक सैम्पलिंग होती है कि इतने लोगों में जो है अगर पॉपुलेशन इतनी है तो उतने लोगों में कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं, तो दैट इज परसेंटेज ऑफ द सैंपल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कंट्री दैट हैव एबिलिटी टू रीड एंड राइट, कि कितने परसेंट उस पर्टिकुलर एरिया में कितने परसेंट लोगों को पढ़ना, लिखना, इंटरप्रेट और कम्युनिकेट करना आता है। व्हेन वी शो इट इन द परसेंटेज दैट इज कॉल्ड लिटरेसी रेट। नाउ this literacy rate we have to see in this bar graph. So first come here, we are talking about 1951, after that we will talk about 2011. So in 1951 when our first 5-year plan that came up, so we are talking about that, and see here this blue color represents the person, that means male and female both, we are talking about the literacy rate of male and female both, that is in blue color. This red color, this denotes the literacy rate of male, and this green color denotes the literacy rate of female. तो यहाँ पे ग्रीन कलर फीमेल को डिनोट कर रहा है, फीमेल के लिटरेसी रेट को, रेड कलर मेल के लिटरेसी रेट को, एंड ब्लू कलर दोनों के एक साथ जो एवरेज हम निकालते हैं वो लिटरेसी रेट को यहाँ पे दिखाया गया है। सो 1951 में अगर आप देखें तो जो फीमेल की लिटरेसी रेट है वो नियर अबाउट 10 है, 10%, एंड मेल की जो लिटरेसी रेट है नियर अबाउट 28 to 29 भी कैन से,
अब दोनों को मिला के जब हम देखेंगे तो द होल, जब हम होल की बात करते हैं मेल एंड फीमेल की, तो 1951 में जो लिटरेसी रेट है वो 18% के लगभग है यहाँ पे। तो लिटरेसी रेट एंड ईयर इन 1951 द लिटरेसी रेट इज 18%। एंड इफ वी टॉक अबाउट 2011, यहाँ के बाद हम जस्ट 2011 में ये देखेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लिटरेसी रेट जो है, ये ब्लू कलर का लिटरेसी रेट हमें देखना है बिकॉज इट इज होल मेल एंड फीमेल। तो ये कहाँ तक गया? 74%। यहाँ ये 80% है, यहाँ ये 74%। देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज, ड्रास्टिक इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट। एक बहुत ही बड़ा जिसे कहते हैं एक चेंज है कि 18% से हम 74% तक आए हुए हैं। दैट मीन्स डे बाय डे, ईयर बाय ईयर दिस literacy rate is increasing. And students, when you put your scale, जब आप अपनी स्केल यहाँ पे रखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये स्केल आपकी ऐसे जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स इट इज इंक्रीजिंग, इट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। और आप ये मेल का देखो, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये फीमेल का देखो, ये भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, बट ऑलवेज इट इज लेस इन कंपैरिजन टू मेन। हमेशा ये मेन के कंपैरिजन में लेस ही रहा है बिकॉज इट इज इंडिया एंड ऑलवेज देयर इज पार्शियलिटी बिटवीन डॉटर एंड सन। दैट इज व्हाई दिस रिजल्ट इज हियर। एंड हियर सी केरला हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट नियर अबाउट 94%। हमारी कंट्री में जो केरला स्टेट है उसकी लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा हाई है, दैट इज नियर अबाउट 94%। एंड बिहार हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट, दैट इज नियर अबाउट 62%। हमने यहाँ राउंड फिगर में लिया हुआ है, तो बिहार की जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा कम है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर बार ग्राफ। आई थिंक स्टूडेंट द बार ग्राफ इज clear to me. If it is not clear, give it in my comment section so that I will provide you some notes or some other information on this topic. And now come here, plan layout on education. Education का plan layout हमारी गवर्नमेंट का क्या है? Plan layout क्या होता है? जैसे हम क्या करते हैं, जब हम अपने घर का बजट बनाते हैं तो हमें ये पता है कि हमारी इनकम 10,000 है, तो हमें 10,000 में से किस आइटम पे कितना रखना है, हमें बच्चों के एजुकेशन पे कितना रखना है, हमें घर के खर्चे के लिए कितना रखना है, हमें दूध वाले को देना है, इनका होगा, तो सब चीज़ें डिसाइड करते हैं। दैट इज प्लान लेआउट कहते हैं उसे। सो कंट्री का भी प्लान लेआउट होता है कि कंट्री की इनकम अगर एक ईयर में इतनी आ रही है तो वो कितने कितने रुपए कहाँ कहाँ खर्चा करेगा। अब यहाँ देखिए फर्स्ट प्लान में, जो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका 1951 से 1956 तक था, ये ड्यूरेशन है फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। इसमें एजुकेशन पे 151 करोड़ रुपीस का स्पेंड करने का इन्होंने प्लान बनाया था कि 151 करोड़ रुपीस हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे, और किया भी। और ये देखिए फर्स्ट प्लान से 11th प्लान में हम देखेंगे कि क्या चेंज आया है। 11th प्लान जो कि ड्यूरेशन था 2007 टू 2012, ओके, इसमें आपका जो ये खर्च इन्होंने डिसाइड किया गवर्नमेंट ने, वो था 3,766.90 करोड़। सो यू कैन सी द डिफरेंस, अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू अमाउंट। आप इन दोनों अमाउंट में एक ह्यूज डिफरेंस फील कर सकते हो। दैट मीन्स गवर्नमेंट इज गिविंग, प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर मनी, spending more and more money on the education. So okay, we have taken it as a rupees. Now we have to take it in the percentage of GDP. अब हम अगर GDP के परसेंट में देखें तो क्या डेटा आएगा ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप GDP पहले समझो कि GDP क्या होती है। जैसे GDP एक छोटी चीज़ में ये समझो कि जैसे हमें पता है कि हमारे घर में इतनी इनकम आनी है, तो GDP भी ये है कि एक साल में हमारी कंट्री में कहाँ से कितनी इनकम आनी है, ठीक है। तो यहाँ पे द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन 1 ईयर। एक साल में आपकी कंट्री में जितने भी गुड्स, जितने भी सामान, जितने सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी टोटल वैल्यू कितनी आई है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज GDP। तो एक साल में कितनी कीमत आई है, तो ये जो आपकी टोटल वैल्यू आ रही है, इस टोटल वैल्यू में से हम
एजुकेशन पे कितना परसेंट देंगे, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। कि गवर्नमेंट जो है डिसाइड करती है कि वो इस जीडीपी का जो टोटल वैल्यू आ रहा है एक साल में, तो उसका कितना परसेंट एजुकेशन पे वो खर्च करेगी। In 1951 to 52, okay, government has given 0.64% of GDP। जो GDP यानी टोटल वैल्यू जो गुड्स और सर्विसेज की 1 ईयर में आई, उसका उन्होंने डिसाइड किया 0.64% वो क्या करेंगे, एजुकेशन पे देंगे। फिर ये 2015 एंड 16 में इट इज इंक्रीज्ड, ठीक है, यहाँ से ये बढ़ के 3% इन्होंने डिसाइड किया कि ये अब 3% जो है जीडीपी का 3% ये स्पेंड करेंगे। नाउ देयर इज अ डिक्रीज, अ बिग डिक्रीज इन 2017 एंड 18। यहाँ देख सकते हैं कि 2017 और 18 में एक छोटा सा चेंज है, एक छोटा सा डिक्रीज यहाँ पे हम देख सकते हैं जो घटा है, कि उन्होंने डिसाइड किया कि जीडीपी जो टोटल वैल्यू है एक ईयर में उसका 2.7% वो जो है एजुकेशन पे खर्च करेगी। सो स्टूडेंट्स, this was all about your quality of population, and I have given you so many information about this, and hopefully your concept is clear about this. And lastly, I am saying, if any confusion is there, please give your questions in my comment section. Thank you very much.